مجھے سنگن ملی ہے کہ وہ تمہارے آدمیوں کے خلاف کسی کریک ڈاؤن میں مصروف ہیں۔ اس دوران میں جہانگیر ان کے ہاتھ آیا ہے۔ وہ خاص طور پر اس کو تلاش نہیں کر رہے تھے۔ تم کس کریک ڈاؤن کی بات کر رہے ہو؟ اس کی آواز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ میرے انکشاف نے اسے چونکا دیا تھا۔ وہ شہر میں لوٹ آیا تھا، شاید اسے اپنے کاروباری دوستوں سے رابطہ کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، اس لیے وہ تفصیلات سے بے خبر تھا، یا شاید بن رہا تھا۔ تم نے میرے پہلے سوال کا جواب نہیں دیا۔ اس بار میں نے اس کی بات ٹال دی۔ فون پر اس کے گہرے سانس کی آواز آئی، پھر وہ بولا، میں کراچی سے بہت دور تھا، چند گھنٹے پہلے یہاں واپس آیا ہوں۔ جہانگیر کے اغوا سے میرا یا میرے کسی آدمی کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ کسی نے تم کو میرے خلاف اکسانے کی کوشش کی ہے۔ میں ایک بہت ضروری فائل لینے کے لیے آیا ہوں، کچھ آرام کر کے دوبارہ لوٹ جاؤں گا۔ اگر تمہارے ہاتھ صاف ہیں تو تم کو خاموشی سے لوٹ جانا چاہیے۔ کوشش کے باوجود میں اپنے لہجے کی تلخی پر قابو نہیں پا سکا۔ وہ بہت دیدہ دلیری کے ساتھ میری آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ضروری فائل والی بات مجھے بے سر و پا محسوس ہوئی تھی۔ میرے ہاتھ بالکل صاف ہیں۔ مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ شہر میں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ میں اپنے جن دوستوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ان کے فون بند پڑے ہوئے ہیں۔ کیا میں تمہارے ان دوستوں کے نام جان سکتا ہوں؟ تمہارے لیے وہ اجنبی ہیں، تو میرے خیر خواہ ہو، اس لیے یہ بتانے میں کوئی حرج نہیں کہ انہیں رفیق اور شہرازی کے ناموں سے پہچانا جاتا ہے۔ اس نے بہت مکاری سے کام لیتے ہوئے قاسم کا نام حذف کر دیا۔ یہ نام میرے لیے واقعی اجنبی ہیں۔ میں نے بے ساختہ کہا، مجھے صرف قاسم کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ جہانگیر کو اس کے گھر میں قید کیا گیا تھا۔ یہ وہی قاسم تو نہیں جو ایک فشری کا مالک ہے؟ صوبراج نے کلابازی کھائی۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ مکمل بے خبری کا اظہار کر کے وہ بات آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ صوبراج، مجھ سے چال بازی مت کرو۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، پھر بھی میں نے اپنی آواز زیادہ تلخ نہیں ہونے دی۔ وہ تمہارا پارٹنر بتایا گیا ہے، اسے پکڑ لیا گیا اور اس نے بدترین عذاب کے سامنے ہتھیار ڈال کر بہت کچھ چکل دیا ہے۔ وہ جھوٹا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے میرا نام لے رہا ہے۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کیا کہا ہے اس حرام زادے نے؟ میں بتا چکا ہوں کہ ابھی مجھے زیادہ تفصیلات کا علم نہیں۔ قاسم کا نام لے کر اسے مسترب کرتے ہی میری کھوپڑی کچھ ٹھنڈی ہو گئی اور میں اپنے لب و لہجے پر قابو پانے میں کامیاب ہو گیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ اب تم اپنے موزنوں کو ٹھکانے لگانے پر تل گئے ہو۔ ٹھٹھ شادی کے بعد قاسم بھی تمہارے ہاتھوں مارا جائے تو مجھے تعجب نہیں ہوگا۔ تم پھر صادق کا نام لے بیٹھے۔ اس کا معاملہ دوسرا تھا۔ قاسم کو اس کے جھوٹ کی سزا ملنی چاہیے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ قاسم کے گھر پر خفیہ چھاپے کے وقت ایک گاڑی میں 2 مشتبہ آدمی وہاں آئے تھے جو للکارنے پر وہاں سے بھاگ گئے۔ میں نے سچ میں جھوٹ کی آمیزش کرتے ہوئے بات آگے بڑھائی۔ کہنے والے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں میں سے ایک میں خود تھا۔ اس نے جلاٹ کا سا لہجہ اختیار کر کے پیش بندی کرنی چاہی۔ یہی کہا جا رہا ہے۔ کم درناک کی وجہ سے تم کو ہزاروں کی بھیڑ میں الگ پہچانا جا سکتا ہے۔ تم وہاں کیا کرنے کے لیے گئے تھے؟ میں نے بات کھول دی۔ یہ جھوٹ ہے، سراسر بکواس ہے۔ آئی بھی کوئی معمولی ایجنسی نہیں ہے۔ انہوں نے میرا سایہ بھی دیکھ لیا ہوتا تو دنیا کے آخری سرے تک میرا پیچھا کرتے۔ مشتبہ آدمیوں کے فرار ہونے کی کہانی کیا تمہیں بودھی نہیں معلوم ہوتی؟ وہ اس کا مضبوط نقطہ تھا۔ میں نے اسے نظر انداز کر کے کہا، میں کہانی نویس ہوں اور نہ کہانیوں پر غور کرتا ہوں۔ مجھے حقائق بتائے گئے ہیں جنہیں جھٹلانا ممکن نہیں ہے۔ اس وقت ان کی ساری توجہ قاسم کے گھر پر مرکوز تھی جہاں ایک قیدی مل چکا تھا۔ وہ اپنا کام ادھورا چھوڑ کر تمہارے پیچھے نہیں جا سکتے تھے، اس لیے تم نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ تم خود سوچو، میرے لیے وہاں کیا رکھا ہوا تھا؟ میں وہاں کیوں جاتا؟ سوچنے کی بات مت کرو صوبراج۔ میں نے ان کڑیوں پر بہت غور کیا اور ایک نتیجے پر پہنچ چکا ہوں۔ میں اس بارے میں ابھی اپنی زبان نہیں کھولنا چاہتا۔ جہانگیر آ جائے تو اس کی کہانی سننے کے بعد میں کوئی قدم اٹھاؤں گا۔ مجھے بتاؤ کہ تم کس نتیجے پر پہنچے ہو۔ تمہاری باتوں نے مجھے فکر مند کر دیا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے میرے دشمن میرے خلاف تمہارے کانوں میں زہر انڈیلنے میں کامیاب رہے۔ مجھ سے کھل کر بات کرو، میں تمہاری کسی بات کا برا نہیں مناؤں گا۔ وہ مجھے خود راہ دے رہا تھا۔ اس موقع سے فائدہ نہ اٹھانا کفران نعمت تھا۔ میں نے ٹھنڈے اور دھیمے لہجے میں کہا، سچی بات یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ تم میری نظروں میں دھیرے دھیرے اپنا اعتبار کھوتے جا رہے ہو۔ میرے ذہن میں ایک کچا نظریہ جنم لے چکا ہے۔ جہانگیر آ جائے تو وہ اس کی تائید یا تردید کر سکے گا۔ میں دانستہ خاموش ہو گیا۔ چپ کیوں ہو گئے؟ بولتے رہو، میں دھیان سے تمہاری بات سن رہا ہوں۔ اس کی اضطراری آواز ابھری۔ مجھے اپنے کچے نظریے کے بارے میں بتاؤ۔ قاسم تمہارا دوست اور پارٹنر ہے۔ تمہارے اشارے پر اس نے جہانگیر کو پکڑ کر اپنے گھر میں قید کر لیا۔ قاسم سے وہ خبر ملتے ہی تم لوٹے اور اس کے گھر پہنچے، لیکن آئی بی والے تم سے پہلے وہاں موجود تھے۔ تمہیں بھاگنا پڑا، مگر کیوں؟ تم نے یہ نہیں سوچا کہ میرا تم سے براہ راست رابطہ تھا تو میرے لیے جہانگیر کیا افادیت رکھتا تھا؟ اتنے پاپڑ بیل کر مجھے کیا مل جاتا؟ میں نے خود تم کو مشورہ دیا تھا کہ FBI والوں سے میرا سودا کر دو۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ وہ مشورہ بلا سبب نہیں دیا گیا تھا۔ میں تمہارا ذہن پڑھ رہا تھا۔ تم پہلے سے اس لائن پر کام شروع کر چکے تھے۔ مجھے امریکیوں کے حوالے کر کے تمہیں FBI سے معافی مل سکتی تھی۔
तुम्हें उम्मीद थी कि जहांगीर तुम्हें मेरे ठिकाने तक पहुंचा देगा, लेकिन आईबी वालों ने तुम्हारी इन उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बहुत अनोखी कहानी सोची है तुमने, वो गंभीर आवाज में बोला। मेरे खिलाफ तुम्हारे दिमाग में लावा पक रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी इन गलत फहमियों को कैसे दूर कर सकूंगा या करूं। तुम मुझसे मिलने से हमेशा कतराते रहे हो। एक बार आमने सामने बैठ कर बात कर लो, मैं तुम्हारी आंखों में सच पढ़ लूंगा। मैं भी बहुत शिद्दत से एक तफसीली मुलाकात की जरूरत महसूस कर रहा हूँ। यह बदकिस्मती है कि मेरे हालात इसकी इजाजत नहीं देते। इस वक्त भी कुछ ऐसी ही मजबूरी है। मुझे बैंक लाकर से एक अहम फाइल निकाल कर ले जानी है। इस काम से निमटने के बाद मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। इसकी जुबान से दूसरी बार फाइल का जिक्र सुनकर मैं चौंक आया। मैंने सरसरी लहजे में कहा, तुम बार बार किस फाइल का जिक्र कर रहे हो? इसकी क्या अहमियत है? तुम ये सवाल न करते तब भी मैं तुम्हें जरूर बताता कि वो कैसी फाइल है। तुमको ग्रीन कोबरा याद है? उसकी आवाज यकायक पुरसकून हो गई। फाइल का वो नाम मेरे दिलो दिमाग पर नक्श था। यादाश्त ताज़ा न होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। दिल्ली के तीरथ राम अस्पताल के करीब वाक़िअ रा के दफातर का सरबराह अनिल विश्वास था। मैंने इसके मातहत नरेश शर्मा को जहान्नुम वासिल करके और अपनी जान पर खेल कर 11 अहम तरीन फाइलों का बंडल वहां से निकाला था, जिनमें ग्रीन कोबरा फाइल सबसे अहम और खतरनाक थी, जिसे GC का कोड दिया गया था। वीरा ने वो तमाम फाइलें लाहौर में जलाल के हवाले की थी। मेरी समझ में नहीं आ सका कि वो फाइल सरकारी तहवील से सोबराई के कब्जे में कैसे चली गई थी। ये कोई पुरानी बात है तो मुझे याद नहीं रही। मैंने झूठ बोला। ज़हन पर जोर दो, सब याद आ जाएगा। वुरा के पाकिस्तान विंग के सरबराह अनिल की बनाई हुई फाइल थी। कहा जाता है कि उसे तुम उड़ा कर लाए थे। अब वो मेरे कब्जे में है। वो होलनाक इंकशाफ था। मेरे वजूद में सनसनी सी दौड़ गई। इस फाइल का गैर मुतलका लोगों के हाथ में जाना बहुत खतरनाक था। मैंने अपने ऊपर जबर करके बेजारी से कहा, यह सब तुम क्यों मुझे बता रहे हो? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ये बात सबको मालूम होनी चाहिए कि वो फाइल मेरे पास है। तुम ये बात दूसरों को जरूर बताओगे। मरा हुआ हाथी 1.25 लाख का होता है। तुमको मालूम होना चाहिए कि इसराइल और अमेरिका इस फाइल के बहुत बड़े खरीदार हैं। बताकर ऐसे काम करने में मजा आता है। अब मैं इसे खुली मंडी में नीलाम करूंगा। अब तक मुझे कुछ उम्मीद थी कि पाकिस्तान में मेरे लिए फिजा साजगार हो जाएगी और मैं यहाँ रह सकूंगा, मगर अब मैं मायूस हो चुका हूँ। जिस मुल्क में मुझे इज्जत नहीं मिल सकती, मुझे इसकी परवाह नहीं होगी। मुझसे मिलने की बात करते करते तुमने अचानक यह नई कहानी शुरू कर दी। तुम्हारे इरादे क्या हैं? और मेरे इरादे अच्छे नहीं हैं। तुम फिक्र ना करो, फाइल अपने कब्जे में महफूज करने के बाद मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। अब वो फाइल मेरी जिंदगी की जमानत है। इसे हासिल करने के लिए तुम समेत पाकिस्तान का हर नमकख्वार मुझे जिंदा रखने पर मजबूर होगा। मेरा किसी फाइल से कोई सरोकार नहीं है। इस गुमान में ना रहना कि मैं चंद कागजों के लिए अपने फैसले बदल लूंगा। अगर तुमको मुझसे कोई डर है तो फिर मुझसे ना मिलो। नहीं डैनी, मैं तुमसे जरूर मिलूंगा। ये मुलाकात मुझ पर कर्ज है। तुम जो चाहो कहते रहो, तुम्हारा अमल मेरे सामने है। राह वाले पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ आते हैं, इसलिए तुम उनके खून के प्यासे हो। तुम इस फाइल को कैसे भुला सकते हो जिसे हासिल करने के लिए तुमने दिल्ली में खून का एक दरिया पार किया था? तुम्हारा दिमाग चल गया है, तुम्हें आराम की जरूरत है। मैंने पुरस्कून लहजा में कहा। इस वक्त तुम मुतजाद बातें कर रहे हो। कभी फाइल को नीलाम करने की बात कर रहे हो और कभी इसे अपनी जिंदगी की जमानत करार दे रहे हो। तुम्हारा दिमाग धुंधलाया हुआ है। पहले मैं कासिम जैसे लोगों से यहाँ अपने हिसाब बेबाक करूंगा। इस दौरान में फाइल की बोली बढ़ती रहेगी। भारत वाले भी इसे वापस खरीदना चाहेंगे। वो इसराइल और अमेरिका से बड़े दाम लगाएंगे। जब मैं तुम्हारी मिट्टी को आखिरी बार खैर बात कहूंगा तो इस फाइल का फैसला होगा। उस वक्त तक ये मेरी ढाल बनी रहेगी। ये याद रखना कि अब जल्द ही मेरा और तुम्हारा आमना सामना होगा। हल्की सी आवाज के साथ सिलसिला मुनक़ता हो गया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरा ज़हन अचानक खाली हो गया हो। इसमें कोई बात बाकी नहीं रही थी, सिर्फ ग्रीन कोबरा के अल्फाज गूंज रहे थे। मैं ये समझने से कासिर था कि वो फाइल महफूज तरीन सरकारी तहवील से सोबराई के हाथ में कैसे चली गई थी। तुम खामोश क्यों हो? क्या सोच रहे हो? वीरा ने जिद होकर तीसरी मर्तबा सवाल किया और मैंने उसे टालने के लिए तपाई से अखबार उठाकर अपने सामने फैला लिया। अब इस बेचारी को क्यों सता रहे हैं? गजाला ने उसकी सिफारिश की। वो आपसे कुछ पूछ रही है। जब मैं कुछ सोच ही नहीं रहा तो उसे क्या बताऊं? मैंने गजाला से कहा, कभी कभी आदमी को खामोश रहकर सुकून मिलता है। इस वक्त मैं ऐसी ही कैफियत से गुजर रहा हूं। देखो डैनी, वीरा आंखें निकाल कर बोली, मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूं। बेशक। अचानक सुल्तान शाह ने उसकी बात दरमियान से उचक ली। मैं एक मुद्दत से ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम एक बालिग और नीम आकिल औरत हो, बच्ची या लड़की नहीं रही हो, मगर ये बात किसी की समझ में नहीं आती। बुट्टे तोते, तुम खामोश रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। वीरा जल कर बोली, खुद को अफलातून मत समझा करो। मैं तुमसे ज्यादा अक्लमंद हूं।
अगर मैं नीम आकिल हूं तो तुम चौथाई बल्कि इससे भी कम आकिल हो। मेरा दर्जा घटाने की कोशिश मत करो, तुम हर हाल में मुझसे आदी रहोगी। सुल्तान शाह उसके तिल मिलाने पर हंसते हुए बोला, अपने मसलिक में 2 औरतों की गवाही एक मर्द की शहादत के बराबर होती है। मसलिक के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी। तुम्हारी बदजुबानी के जवाब में दूसरों की दिल आजारी नहीं की जा सकती, लेकिन मेरी आरजू है कि तुम्हारी शहादत का मौका जल्द अज जल्द आए ताकि जमीन का बोझ कुछ कम हो सके। वीरा ने जहरीले लहजे में जवाब दिया, मैं असली शहादत की नहीं गवाही की बात कर रहा था। सुल्तान शाह बौखला कर बोला, तुम मेरे मरने की दुआओं पर उतर आई। मुझे पढ़ाने की कोशिश मत करो, इतनी उर्दू मैं भी जानती हूँ। वीरा ने उसी लहजे में कहा, मैंने वही लफ्ज इस्तेमाल किया जो तुम्हारी जुबान पर आया था। हैरत है कि तुम एक मुसलमान होने का दावा करते हो और शहीद होने से डरते हो। सुल्तान शाह मुंह चला कर रह गया। उसे वीरा का कोई जवाब नहीं बन पड़ा। तुमने जो बात अच्छे पैराए में इस्तेमाल की है वो टाम के लिए सख्त तकलीफ का बायस बनी हुई है। मैंने इनकी तकरार खत्म कराने के लिए दखल अंदाजी की। तुम्हें यकायक टाम कैसे याद आ गया? वीरा अपनी बहस को भूल कर मेरी तरफ मुतवज्जा हो गई। रात गए उसका फोन आया था। इसे सख्त तकलीफ है कि मौत से बेखौफी ने हम लोगों यानी मुसलमानों को सरकश बना दिया है। मैंने वजाहत की। वो सही कहता है, दुनिया भर में यह सोच बहुत तेजी से परवान चढ़ रही है कि शहादत के नजरिए ने मुसलमानों के लिए मौत को पुरकशिश बना दिया है, जबकि दूसरे तमाम मज़ाहिब के मानने वाले मौत से डरते कांपते हैं। वीरा ने किसी तरद्दुद के बगैर कहा, यह इस कुर्राए अर्ज की बदनसीबी है कि ताकत का तवाजुन इस वक्त ईसाई दुनिया के हाथ में है और अमेरिका इसका सरखेल बना हुआ है। दुनिया में जहां भी जुल्म होता है इसकी जिम्मेदारी अमेरिका के सर डाली जाती है और जुल्म के खिलाफ लड़ने वालों की अक्सरियत मुसलमान है। वो अपने अल्लाह के अहकाम की सरबुलंदी और ज़मीन की हिफाजत या आज़ादी के जज्बे में डूब कर लड़ते हैं। इनके दिलों में मौत का कोई खौफ नहीं होता। इनके मुखालिफ मरने से डरते हैं। कई अशरों से चलने वाली ये मकामी लड़ाइयाँ अब रफ्ता रफ्ता अमेरिका और मुसलमानों के तसादुम में ढल चुकी हैं। इसी वजह से अमेरिकी ज़्यादा तशवीश में मुब्तला है। सब वही सोचते हैं जो टाम कह चुका है, लेकिन ये बात नानिस्ता उछाली नहीं जा रही। इसका सबब सिर्फ ये है कि आज की मशीनी दुनिया के रूह यानी तेल पर मुसलमानों का कब्जा है। अगर अमेरिका खुलकर मुसलमानों के खिलाफ मैदान में उतर आया तो इसके जगमगाते हुए शहर होलनाक अंधेरों में डूब जाएंगे। इसके लिए अपना तेल नाकाफी है। बहुत खूब। वीरा की तकरीर पर सुल्तान शाह खामोश नहीं रह सका। तुमने टाम की जरा सी बात को खैंचतान कर उसे आलमी सियासत से मिला दिया, जिसके खिलाफ दुनिया भर में शदीद गम गुस्से की लहर उठी हुई है। तेल और दूसरे वसाइल की लड़ाई से हमारा क्या ताल्लुक? इस वक्त हमारा झगड़ा टाम और सोहराय से है। बात को वहीं तक रहने दो। तुम मेरा मजाक उड़ाते रहो, लेकिन मेरी बात ये लिख लो कहीं कि एक दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस वक्त तुम्हें पता चलेगा कि मेरी हर बात सच है। वीरा बोली, पाकिस्तान में कहीं भी काबिल जिक्र मिकदार में तेल नहीं पाया जाता, फिर तुम्हारे हम वतन क्यों हमारा तेल निकालने पर तुले हुए हैं? सुल्तान शाह ने पूछा। तुम्हारे 2 कसूर हैं। अव्वल ये कि तुम्हारा मुल्क इंतहाई हिसास जोग्राफियाई खित्ते में वाक़ है। रूस को दंदान चिकन हार का सामना न करना पड़ता तो अफगानिस्तान को रोनने के बाद पाकिस्तान का रुख करता, ताकि इसे गर्म पानी की साल भर खुली रहने वाली बंदरगाहों तक रसाई मिल सके। सुल्तान शाह की जालमाना जिरा के बावजूद वीरा का जोश ठंडा नहीं हो सका था। वो अपनी रो में बोले जा रही थी और मैं महज इस वजह से खामोश था कि सुल्तान शाह से उलझ कर वो मुझे भूली हुई थी। तुम्हारी यह स्ट्रेटेजिक अहमियत हमेशा बड़ी ताकतों की निगाह में खटकती रही है। भारत तुमसे बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन इसे ये अहमियत हासिल नहीं है। वो अपनी रो में बोले जा रही थी। इसको ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान न बना होता और बरसगीर एक ही ममलिकत होती तो यह एजाज भारत को मिलता। अब इनके पास एक कमजोर कार्ड है कि वो चीन के पड़ोसी हैं। चीन ने जब से आईनी दीवार गिराकर मुआशी मैदान में ओपन डोर पॉलिसी अपनाई है, इसके बारे में मगरिब का रवैया बहुत तेजी से बदला है। दुश्मनी और मुखासमत को भूलकर हर तरक्की याफ्ता मुल्क अब दुनिया की सबसे बड़ी मंडी में घुसने की कोशिश कर रहा है। तुम बिल्कुल दुरुस्त कह रही हो। सुल्तान शाह ने तमस्खुर आमेज अंदाज में सर हिलाते उसकी बात में दखल अंदाजी की। साम्राज्यत के नए रूप के बारे में बरसों से शोर मचा हुआ है। अब फौजी कब्जे का तस्वुर मुआशी गलबे में मादूम हो रहा है। अमनो अमान के साथ आमदनी और वसाइल पर कब्जा हो जाने के बाद किसी जगह फौजें उतारने की जरूरत बाकी नहीं रही। अपनी बात आगे बढ़ाओ, बार बार बीच में टांग मत अड़ाओ। वीरा ने नागवारी से कहा, मुझे बोलने दो। मिस्र एक जमाने में अरब कौमियत का सबसे बड़ा दाई था। आज जमाल अब्दुल नासिर का वो मिस्र अमेरिका के बगल में दबा हुआ है। सोइकार्नो के इंडोनेशिया का क्या हाशर हुआ? ये सब खुले खुले सबक हैं। चीन के गली कोचों में आज रॉक, पॉप और डिस्को म्यूजिक की धुनें गूंज रही हैं। चीनी नौजवानों में जीन्स और टी शर्ट तेजी से मकबूल हो रही है। इस सकाफती और मुआशी यलगार से बचना मुश्किल है।
अमरीकी फिरौनों के लिए तीसरी दुनिया से कोई मूसा न उठा तो 21वीं सदी के पहले अशरे में अमरीकी पूरी दुनिया को निकल जाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा कठपुतली और बेबस तमाशाई बन कर रह जाएगी। दुनिया भर के लिए फरमान अमरूज हर सुबह व्हाइट हाउस से जारी हुआ करेगा। इससे ही निराफ करने वालों को पाबा जोला करके दुनिया भर के सामने किसी चौपाए की तरह जलील किया जाएगा। कमजोर कौमें इनसे दोस्ती को अपने लिए बायस इफ्तिखार समझेंगी। बेफैज हुक्मरान इनके बड़ों के साथ अपनी तस्वीरें खिंचवाने को ऐन सआदत तस्वुर करेंगे। यह मानना पड़ेगा कि तुम्हारे तजिज़िये बहुत बेलाग और तीखे होते हैं। वीरा के खामोश होने पर मैंने तारीफी लहजे में कहा, अमरीकी होने के बावजूद तुम हर बात को गैर जानबदारी की ऐनक से देखती हो, अपनों की बुराई को भी बुराई समझती हो, दूसरे अमरीकियों की तरह इसकी पर्दापोशी की कोशिश नहीं करती। हम अमरीकी मेरी तरह सोचते हैं, उसने जवाब दिया। जिस तरह अमरीका दूसरी दुनिया से अलग थलग तकरीबन एक बर्र-ए-आज़म है, इसी तरह अमरीकी सोसाइटी भी दूसरे मुआशरों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। वहाँ हर शख्स सियासत में अपना सर कपाने का आदी नहीं है। वह अपनी काल में मस्त और अपने हाल पर खुश रहने वालों का मुल्क है। हर 4 बरस बाद वो अपने सदर का इंतखाब करते हैं और पूरी नेक नीयत से पिछले 4 सालों की हुकूमती कारकर्दगी का जायजा लेकर अपने ज़मीर के मुताबिक वोट देते हैं और फिर सियासत को भूल कर अपने रोज़मर्रा के मामूलात में मसरूफ़ हो जाते हैं। इनके नज़दीक मुल्क और सियासत को चलाना इन पेशावर लोगों की जिम्मेदारी होती है जो इनके वोट से बरसरे इक़्तिदार आते हैं। हुक्मरानों के साथ राय आमा का भी एक वजन होता है। मैंने कहा, यह फराड है, उसने बेसाख्ता जवाब दिया। वहाँ हुकूमत के अलावा दूसरी कुव्वत ज़राए अबलाग की होती है। वो गैल्प पोल के नाम पर हर मसले पर राय शुमारी कराते रहते हैं और इनके नताइज को खूब उछालते हैं। जिस राय आमा का नाम दे दिया जाता है, करोड़ों की आबादी में 10-5 हज़ार अफराद की राय कोई अहमियत नहीं रखती। ऐसे गैल्प पोल में जानबूझकर सवालात की जुबान इस तरह एहतियात से मुंतखब की जाती है कि हर सूरत में पहले से तयशुदा एक अक्सरियती फैसला सामने आए। अमरीकी मुआशरत का महवर डॉलर है। वहाँ हर शख्स हर लम्हे डॉलर कमाने के चक्कर में लगा रहता है। इसके पास सियासत लड़ाने का वक्त नहीं होता। तुम ये नहीं कह सकती आम अमरीकी इतने बेबस हों तो वहाँ हुकूमतों की तब्दीली अमल में नहीं आ सकती। मैंने एतराज़ किया, वो बेहिस नहीं होते, उसने तेजी से मेरी तस्दीक करते हुए कहा। पूरी होशमंदी से वोट देते हैं और 4 साल के लिए अक्सरियती फैसला तस्लीम कर लेते हैं। दोबारा वोट देने का वक्त आता है तो पिछले 4 सालों का कच्चा चिट्ठा इनके सामने होता है। ये कमजोर हो तो हुक्मरान पार्टी आने वाहिद में अपोजिशन में धकेल दी जाती है। पता नहीं ये क्या बातें हो रही हैं, गजाला ने उकताए हुए अंदाज में कहा। अमेरिका अपनी ऐसी की तैसी में जाए, हमें अपने मसाइल के हल के बारे में सोचना चाहिए। हम इसी बारे में बात कर रहे हैं, वीरा ने किसी नदामत के बगैर कहा। पूरा पस मंजर जाने बगैर कोई मसला हल नहीं किया जा सकता। अमेरिकियों की पाकिस्तान दुश्मनी कोई नई बात नहीं है, गजाला बोली। इस मौजू पर हम बारहा बात कर चुके हैं। कुछ बातें नहीं हैं, वीरा ने जवाब दिया। पिछले चंद बरसों में दहशतगर्दी को मुसलमानों से मंसूब करके अमरीकियों के जहनों में प्रोपेगंडा के जरिए इतना जहर भर दिया गया है कि अब अमेरिका में वही पार्टी हुक्मरानी करेगी जो मक्कारी के साथ दुनिया भर में मुसलमानों की सरकोबी के अज़ाइम रखती हो। आज आम तौर पर हर अमरीकी मुसलमानों से डरा सहमा हुआ है।